یا ذل جلال والاکرام، پیارے معزز حجاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھنٹے کا ہمارا یہ سفر ہے، دوران سفر آپ حجاج کرام کی توجہ رہے گی۔ انشاءاللہ جو مقدس مقامات آئیں گے آپ کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں ان کی زیارات کروائی جائیں گی اور ان کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم جس مقدس مقام کی زیارت کریں گے وہ ہے جبل سور غار سور۔ جبل سور غار سور، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، تو آج میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں مکہ کی زیارت پہ، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مکہ کی پہلی زیارت میں ہماری شامل ہے غار سور کی زیارت، جو کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا جب ہم مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو یہ مولوی صاحب اس کے بارے میں بیان دے رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوں گے تو ان کا ریئیکشن، میری جان، میرا مال، میری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہجرت کے اس سفر میں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ کوئی عذر پیش نہیں کیا، یہ نہیں کہا مکہ میں ہمارا بزنس ہے، مکہ میں ہمارا کاروبار ہے، بلکہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے اس سفر میں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ہجرت کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جی یہاں پہ میں نے مختصر سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کہ ان کے مولوی صاحب نے تو ہمیں بہت بڑا واقعہ سنایا تھا، تو میں نے اتنی بڑی ریکارڈنگ تو نہیں کی، اور ساتھ ساتھ وہ بتانے تھے کہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ غار سور آنے والا ہے۔ تو ابھی ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ ہے غار سور۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت زیادہ تھا اس لیے انہیں پارکنگ نہیں ملی اور ہم رکے نہیں۔ تو جی یہاں پہ ہماری اگلی زیارت ہے مسجد راجد، تو آئیے بسم اللہ جب بھی اللہ کے گھر کو دیکھیں حاجی صاحب آپ کی زبان ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے نہ رکے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ ایک چھوٹے شیخ نے اپنی والدہ کے نام سے یہ مسجد تیار کرائی تھی، مسجد راجد۔ یہ حدود حرم کے دو بورڈ لگے ہوئے ہیں، دونوں سائڈوں پر دیکھتے جائیں۔ حدود حرم کیا ہے؟ جنت کا پتھر۔ حجر اسود کو جب جبل ابو قبیس پہاڑ پر اتارا گیا تھا تو جہاں تک اس کی روشنی لگی تھی وہ جگہ حدود حرم ہے۔ تھوڑا آگے چل کر آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے، یہ جتنی بھی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ مکہ پاک کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ 72 ممالک کی ٹرانسلیشن ہے اس یونیورسٹی کے اندر۔ حدود حرم سے باہر یہ اس لیے بنائی گئی ہے، غیر مسلم کنٹری سے بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جامعہ ام القری یونیورسٹی یہ زیارت میں شامل نہیں، صرف آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ رائٹ سائڈ پر دیکھتے جائیں، یہ جتنی بھی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے مکہ پاک کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ہم عرفات کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم میدان عرفات میں انٹر ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھیں آپ سب بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ سارا میدان عرفات ہے، اور ابھی ہم جبل رحمت کی طرف جا رہے ہیں۔ کون سا پہاڑ ہے حاجی صاحب؟ جبل رحمت، رحمتوں والا پہاڑ، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اپنے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ کسرا نامی اونٹنی پر بیٹھ کر 2.5 گھنٹے کا خطبہ دیا تھا تقریباً۔ زندگی کے مسائل بتائے تھے، زندگی گزارنے کے طور و طریقے بتائے تھے۔ کم و بیش 1,50,000 صحابہ کرام رضوان اللہ
इसी पहाड़ के दामन में बैठकर वो खुतबा सुन रहे थे। इसी पहाड़ के दामन में हमारे माँ और बाप की दुआ कबूल हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब जन्नत से दुनिया पर आ रहे थे तो आपस में जुदा हो गए थे, बिछड़ गए थे। 350 साल तक ये दुआएं करते रहे, रोते रहे। पूरी दुनिया में अगर कोई रोया है तो वो सबसे ज्यादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जुदाई में रोए हैं। 350 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुल्क श्रीलंका के अंदर उतारा जाता है, और जिस पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा जाता है, आज भी उस पहाड़ पर इनके नालायन मुबारक का निशान वाज़िह है। अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अम्मा हवा हो गई थी, एक दूसरे को इन्होंने पहचान लिया था। अरफात के मानी ही है जानना पहचानना। तो आप हाजी साहब इस पहाड़ के दामन में जाएं, इस अंदाज से दुआ मांगे कि बारी ताला यहाँ पर हमारे माँ और बाप की दुआ कबूल हुई थी, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल होंगे। हाजी साहब पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी मुकद्दस मकामात जिनकी ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। तो काइंडली हाजी साहब आपने ग्रुप के साथ रहना है, ग्रुप को फॉलो करना है। दाएं बाएं आगे पीछे आपने कहीं भी नहीं जाना है। ये जैसे गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो आपने गाड़ी का नंबर नोट कर लेना है। आधा घंटा इंशाल्लाह हम यहाँ पर रुकेंगे। तो यहाँ पे हम पहले रुके हैं, बस से निकल के सब जब इकट्ठे हो गए हैं तो हम अपने ग्रुप के साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ जबल रहमत में एंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस अल्लाह ताला से दुआ करते हुए जा रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने लोग, बहुत माशाल्लाह, जहाँ भी चले जो दुनिया टूट कर आई हुई है ज़ियारत के लिए, इबादत के लिए। तो तरह तरह के लोग हैं, हर कंट्री से लोग आए हुए हैं। तो इसलिए होता है कि अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ रहें, ताकि हरम शरीफ में तो फिर भी हमें रास्तों का पता चल ही जाता है, लेकिन ज़ियारत का रास्ता हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम होता। तो ये हम जा रहे हैं, वो देखिए सामने वो है जबल रहमत, रहमतों वाला पहाड़। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो हम इतनी दूर से चलते चलते आए हैं जबल रहमत के पहाड़ के बिल्कुल पास। वो देखिए सामने बीच में रास्ते में आइसक्रीम्स वाले बहुत खड़े थे, लोग आइसक्रीम्स ले रहे थे। हमने वापसी में आइसक्रीम खाई थी, लेकिन आई थिंक वो मैंने शूट नहीं किया। तो ये देखें ट्रक्स खड़े हैं, आइसक्रीम वाले लोग खा रहे हैं, और हम जबल रहमत की तरफ रवाना हो रहे हैं। माशाल्लाह से आप लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ दें, और कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह कह दें, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। माशाल्लाह से जबल रहमत, हमारे ग्रुप वालों ने हमें बता दिया है कि हमने उस साइन पे बस इकट्ठे होना है आधे घंटे तक। तो जिसका दिल करता है वो ऊपर चढ़ जाए, जिसका दिल करता है वो ना चढ़े। हमने यहाँ पे एक पिक्चर वगैरह बनाएंगे हैं, दुआ वगैरह की है। रश बहुत ज़्यादा है इसलिए हम ऊपर चढ़ नहीं रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ तक जाने के भी तौफीक। वो देखें ये है जबल रहमत, यहाँ पे जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। पानी लेके, हाँ हमने आइसक्रीम खाई थी बट मैंने शूट नहीं किया, या बस में बैठने लगे। अपने लेफ्ट साइड पर देखते जाएं, 6 मीनार 3 गुंबद वाली मस्जिद, जहां पर हज का खुतबा होता है। हम लोग अपने घरों में बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, सुनते हैं। आज आप खुशकिस्मत लोग हैं जो आज मस्जिद निमरा की लाइव ज़ियारत कर रहे हैं। ये पूरा साल बंद रहती है। पूरे साल में मस्जिद निमरा को सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है, 9 जिल हज वाले दिन हज का खुतबा होता है। उसके बाद एक अजान होती है और 2 नमाजें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, जोर और असर की नमाज। फिर जब मगरिब की अजान होती है
मगरिब की अजान सुनने के बाद फिर हुज्जाज इकराम वादी मुजल्फा की तरफ निकलते हैं और वादी मुजल्फा में भी पहुंचकर दो नमाजें पढ़ी जाती हैं, मगरिब और अशा। ये दोनों नमाजें मिलाकर पढ़ी जाती हैं वादी मुजल्फा के अंदर। 9 जिलहज वाला दिन वो मुबारक दिन होता है जिस दिन आपकी मगरिब भी कज़ा नहीं होगी। ये राइट साइड पर देखें, येलो कलर के आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं। यहाँ से जब आप अरफात के अंदर इंटर होंगे तो यहाँ से मैदान अरफात शुरू हो जाता है। अभी हम मैदान अरफात से बाहर निकल आए हैं। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों से क्लियर करती रहूँगी, जो मैदान अरफात और मैदान मुजल्फा है ये सिर्फ एक मैदान है जहाँ पे हाजी के यहाँ के नीचे रात गुजार जाती है। किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री से हाजी साहब बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, इसी मैदान में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं और इसी मैदान के अंदर पहुंच कर 2 नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, मगरिब और अशा। ये जहां तक आपकी आगे नजर जा रही है ये सारा वादी मुजल्फा का मैदान है। आगे चलकर राइट साइड पर देखेंगे 2 मीनार वाली में भी है। अपने राइट साइड पर देखते जाएं, 2 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद मशरिल हरम, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है, ज़ियारत करते जाएं। ये मस्जिद भी हज पर ही खोली जाती है। 3 मस्जिदें मक्का ज़ियारत में शामिल 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो सिर्फ हज पर ही खोली जाती हैं। मस्जिद निमरा, उसके बाद मस्जिद मशरिल हरम के लेफ्ट साइड पर देखें। जमरात शैतान को मारने के लिए हुज्जाज इकराम वादी मुजल्फा से ये कंकर उठाते हैं। 49 कंकर उठाना वाजिब है, 49 कंकर उठाना वाजिब है और 71 कंकर उठाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप अरफात से भी ये कंकर उठा सकते हैं, इसमें कोई हिर्ज नहीं है, लेकिन वादी मुजल्फा से ये कंकर उठाना सुन्नत है। थोड़ी ही देर में हम वादी मुजल्फा से निकलेंगे और उस वादी से गुजरेंगे जहां पर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ था, वादी महस्सर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी आप इस वादी से गुजरे, हज के दौरान, उम्रे के दौरान गाड़ी में सफर कर रहे हैं या पैदल सफर कर रहे हैं, जब भी आप इस वादी से गुजरे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरे और जल्दी जल्दी गुजरा करें। तो नजर आ रही है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये खाली जगह जो आपको नजर आ रही है ये वादी महस्सर है जहां पर अल्लाह पाक का अजाब नाज़िल हुआ था। ये सामने मीना के बोर्ड लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। हजरत अब आप बहुत ही गौर से देखिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मकाम इस्माइल, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेके गए थे। ये देखिए, मैं जूम कर रही हूँ, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वही जगह है जहाँ से हमारी अब तक का ईद कह लें, त्यौहार कह लें, स्टार्ट है, कुर्बानी का त्यौहार। क्योंकि हमारा मकसद ज़ियारत का है। अपने लेफ्ट साइड पर देखेंगे 4 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद खैफ। अल्लाह तबारक व तआला के 70 अंबिया ने नमाजें पढ़ी है मस्जिद खैफ में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और बाद आयत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जहां पर कब्र मुबारक भी है। गाड़ी में सफर कर रहे हैं या पैदल सफर कर रहे हैं, जब भी आप इस वादी से गुजरे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरे और जल्दी जल्दी गुजरा करें। तो नजर आ रही है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये खाली जगह जो आपको नजर आ रही है ये वादी महस्सर है जहां पर अल्लाह पाक का अजाब नाज़िल हुआ था। ये सामने मीना के बोर्ड लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। हजरत अब आप बहुत ही गौर से देखिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मकाम इस्माइल, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेके गए थे। ये देखिए, मैं जूम कर रही हूँ, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वही जगह है जहाँ से हमारी अब तक का ईद कह लें, त्यौहार कह लें, स्टार्ट है, कुर्बानी का त्यौहार। क्योंकि हमारा मकसद ज़ियारत का है।
अपने लेफ्ट साइड पर देखेंगे 4 मीनार वाली मस्जिद खैफ। अल्लाह तबारक व तआला के 70 अंबिया ने नमाजें पढ़ी है मस्जिद खैफ में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और बाद आयत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर कब्र मुबारक भी है। हाजी साहब बिल्कुल मस्जिद खैफ के सामने देखें 3 ब्रिज आपको नजर आ रहे हैं, दरमियान में अंधेरा बना हुआ है और छतरी नुमा टेंट बना हुआ आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, जिसके नीचे अंधेरा है। नजर आ रहा है हाजी साहब सबको? यह जमारात शैतान वाली जगह है। 3 शैतान यहाँ पर कैद हैं, यहाँ पर 3 शैतान कैद हैं। सबसे छोटा शैतान, मनचला शैतान यानी दरमियाना शैतान, और सबसे बड़ा शैतान। हाजी साहब इनको ज्यादा प्रोटोकॉल ना दें, ये हमारे दुश्मन हैं। कंट्री में चले जाएं, आपको ये नजारा, आपको ये मंजर कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये नजारे, ये जलवे आपको सिर्फ मीना में ही नजर आएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जी अब हम पहुंच गए मस्जिद जराना। यहाँ पे सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ एहराम बांध के आया करते थे मक्का शरीफ, और उम्रा किया करते थे। तो जहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने एहराम बांध लिया था इस जगह पे। यहाँ पे नवाफिल पढ़ना सवाब का काम है। ये देखिए रश बहुत ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं या जिन लोगों ने पहले से व्लॉग्स देखे हुए हैं उन लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही वो बार बार ये व्लॉग देखें ताकि आप लोग समझ सकें, और जब आप लोग इस मकाम पर आएँ तो आप लोगों को सब समझ हो। थोड़ा सा आगे जाकर नीचे उतरेंगे, अपने राइट साइड पर देखते जाएं। नीचे उतरेंगे दबीगा शोया, आपको एक छोटी सी गली नजर आ रही है। गौर से देखें हाजी साहब, एक छोटी सी आपको गली नजर आ रही है, गौर से देखें। ये गारे हिरा है जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और गारे हिरा पे जाने का जो बेस्ट टाइम है वो असर के बाद का है। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। ये जो जंगला आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये 2 हिस्से हैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान के। एक हिस्सा यहाँ पर खत्म होता है, दूसरा जो ब्रिज नजर आ रहा है इससे आगे वाला। इस जंगले के अंदर आपको एक और जंगला नजर आ रहा है। उस जंगले के अंदर सैयदना खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र। तो जी ये हमारी ज़ियारत का सफ़र था जो कि हमने तय पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छे से हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद सफ़र के लिए और ज़ियारत और इबादत के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।